This topic is very important with reference to section D, that is long question. So you should know what you should write and how would you explain this particular topic. So first of all, you'll write introduction, then you'll give principle, construction, then working description, mathematical form or talk, maximum, minimum talk. At the end, you'll give conclusion. So introduction, you would write that when a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field, it would experience some force, and this is one of the bases of electromagnetism, and this phenomena help us understanding the working of motors and generator. This will all come in the section of introduction. So principle. Principle behind this is that whenever you place a current carrying coil in a uniform magnetic field, the inner magnetic field of the current carrying coil, we know that whenever current carrying coil in a current carrying coil, the current is passing through a current wire, the magnet it induce a magnetic field around it, which was given according to right hand rule. So yeah, this was it. So we know that this internal field would interact with the external uniform magnetic field which we have applied, and this interaction would cause a net force on wire, and that force is known as that force is given as F is equals to BIL sine theta, where B is the magnetic field flux density, magnetic flux density, I is the current flowing through the wire, and L is the length of the wire, and theta is the angle between L and B. So, and the net force here, you should know that this net force would cause torque in the coil. This a force is produced whenever a rectangular coil is placed inside a uniform magnetic field, and that force would cause a torque in the coil. How, we'll see. So construction, you'll get started with construction. Construction is really easy and very simple, that you have a rectangular coil, current carrying coil having n number of turns. Here in book it has, the author has only showed one number of turn. So if you have a number of if you have a coil which have a number of turns, so it would be a very complex system like this, and number of coils, they are at different angles, so a cluster of coils would, and that would be very very difficult to study at this level. So we'll stick with we'll take number of coils, but in diagram we have considered only one number of coils, that is one, and n number of turns we have taken in theory. So n number of turns carrying a current I in a uniform magnetic field of flux density B. So simple, that you have two magnets and the flux density of these magnets is B, and B is directed such that N towards S. Now you have placed a rectangular coil between them, and you have called it PQRS. So we'll see what would happen in this coil. You'll just write construction mein, you just have to draw figure and you have to write whatever you have drawn. So just write, there is a rectangular coil having n number of turns, and it is carrying a current I, and it is placed in a magnetic field density B, and the arrangement is shown in figure, and current's direction is also shown in the figure. You just have to write. Next, we have to explain the working behind this whole thing. So what happened is, you have a north pole here and you have a south pole here, and you have a you have a current carrying coil, this जिसकी यहाँ पे shaft है दरमियान में, there's a pivot point, this will be the pivot point. So pivot point. So here what would happen, this is P, this is Q, this is R, this is S. So P, Q, R, and the direction of current is
like this. It is entering from here, going there. Now P to S, this, and leaving from IR. So this is the direction of current. What would happen on side PS and QR? PS side is this upward and this downward side is QR. So this is Q, this is R. So what would happen here? The current's direction, as you can see, the direction of current is rightwards. So according to left hand rule, if you apply this left hand rule, current in this direction, I F D I. So first, this is your second finger, this first finger is pointing, also pointing here. So this is not possible because if you apply the formula, that is BIL sine theta, so sine theta here, this sine theta becomes sine 0 because the angle between I and B, और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो द एंगल बिटवीन एल, असल में थीटा इज द एंगल बिटवीन B and L. So the angle between BL and is equals to 0. So therefore the force on side PS is equals to 0. Likewise for QR it would be 0 because even if the current is dividing like this, so अगर आप ये वाला लो part तो यहाँ पे आपके पास sin 180 degrees बनेगा. So F is equals to BIL sin 180 degrees which is equals to 0. और अगर आप इस पोर्शन में लो, सो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, आपके पास B की डायरेक्शन भी यही है. सो तो एंगल अगेन 0 डिग्रीज बनेगा, तो साइन 0 डिग्रीज अगेन 0. सो यहाँ पे आपके पास PS और QR दोनों में आपके पास करंट इज the current is existing but the force is 0. However, on side PQ में अब आप देख सकते हो कि आपके पास क्या है कि PQ में आपके पास ये डायरेक्शन है करंट की. करंट इज गोइंग अपवर्ड्स, P and Q. So current is going upwards and field is directed like this. Field is going like this. So the angle between P and current and or the L length of the wire, this length of the wire and this field is 90 degrees. तो यहाँ पे आपके पास maximum फोर्स एग्जिस्ट करेगी. दैट इज मैक्सिमम फोर्स. आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखो तो F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा. सो आपके पास यहाँ एंगल इज 90 डिग्रीज. सो यहाँ पे आपके पास maximum force exist करेगी. This is 1, so you have F is equals to BIL. This is very simple. अब आपको यहाँ पे find out करनी है, ये तो आपने magnitude find out कर लिया ना, this is magnitude. What about direction? Direction will be given by left hand rule. Left hand rule आपके पास again आप इस पे अप्लाई करो. सो यहाँ पे आपके पास FBI. सो यहाँ पे अब आपके पास फर्स्ट फिंगर is pointing towards direction of field, that this is first finger. Kindly do it with the description so that you can understand. So first finger is pointing rightwards towards the direction of field and this second finger is pointing in the direction of current. So your hand will get uncomfortable, but trust me, this is worth it. Do it. So your first finger will be like this, second finger will be like this. The current is upwards, so यहाँ पे आपके पास current आ गया and your thumb is at the back. It is pointing inside, yeah, away from you. So away from you, your thumb is showing the direction of force. So that means कि force will be inward. So यहाँ पे हम force will be inward. So यहाँ पे हम force को x से show कर सकते हैं. So यहाँ पे आपने बता दिया कि F1 is equals to NBI. यहाँ पे A जो है that is जो आपके पास construction में we should have written that this length is B and this length is A. This length is also A and this total length is also B. So ये आपके पास length है, यहाँ पे ये A है.
सो NBIL की जगह आपने यहाँ पे A लिख दिया। लाइकवाइज ऑन RS साइड अगेन यही वाली सारी लॉजिक यूज़ करोगे, बट यहाँ पे आपके पास करंट की डायरेक्शन इज़ डाउनवर्ड्स। सो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होने की वजह से अगेन आप देखो कि B और I के दरमियान में एंगल जो है अगेन इट इज़ 90 डिग्रीज। सो दैट मीन्स कि आपके पास फोर्स विल बी मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम होगी, बट आपके पास F की डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, दैट इज़ F will come out of the page। अगर आप इसको अप्लाई करो, so तो योर सेकेंड फिंगर इन डायरेक्शन इन राइटवर्ड्स आप करो और करंट को डाउनवर्ड्स करो। सो ये आपके पास सेकेंड फिंगर राइट, सेकेंड सॉरी फर्स्ट फिंगर आपकी राइटवर्ड्स, सेकेंड फिंगर आपकी डाउनवर्ड्स, सो थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेकेंड फिंगर downwards, first finger rightward, so thumb is pointing towards you, that is यहाँ पे आपके पास F की डायरेक्शन आप देखो हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू NBIA, बिकॉज इस साइड की भी आपके पास जो लेंथ है दैट इज A। सो दिस वाज नाउ हमें पता है कि ये दो फोर्सेस जो होंगी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी, एक इनवर्ड्स थी और यहाँ वाली आउटवर्ड्स थी। सो ये आपके पास अगर आप के पास जब कॉइल में आप देखो तो ये आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है। सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज फील्ड भी सेम दोनों के अक्रॉस अप्लाई हुई हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के बराबर हैं और आपके पास करंट भी सेम फ्लो कर रहा है और दोनों की लेंथ भी सेम है। सो ये आपके पास दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड को आप इक्वेट कर दोगे एंड यूल गेट F इज इक्वल्स टू NBIA। और वहाँ पे आपको ये बताना है कि A is the length of PQ and R। Now the important and the mathematical part, that what would be the torque. We know that the two equal forces are acting but in opposite direction, that is अगर आपको याद हो कि अभी हमने पढ़ा है कि एक साइड पे आपके पास x डायरेक्शन में और एक साइड पे आपके पास डॉट, यानी एक में आउटवर्ड्स आ रही है, एक में इनवर्ड्स है, एक में इनवर्ड्स है, एक में आउटवर्ड्स है। इस साइड पे आउट इनवर्ड्स और दूसरी साइड पे आउटवर्ड्स है और ऊपर नीचे तो फोर्सेस हैं ही नहीं। सो अब आपके पास यहाँ पे हो क्या रहा है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना है कि सच दैट दे डू नॉट शेयर देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये शेयर नहीं करी, इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है। एक का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पीछे की तरफ है, एक का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ है, इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कॉमन नहीं है। सो जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे अगर आपको याद हो इस तरह की कंडीशंस में जब यहाँ पे आपके पास पिवट पॉइंट हो, सो ये वाली कंडीशन स्टीयरिंग व्हील वगैरह में आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में कपल के लिए। सो ये आपके पास कपल वाला फिनोमेना यहाँ पे होगा। सो दिस नेट फोर्स देखो यहाँ पे हुआ ये कि प्लेसिंग अ रेक्टेंगुलर कॉइल विच वाज कैरिंग करंट experiences some force due to magnetic field, due to interaction of its internal magnetic field and external magnetic field. That force was acting such that two forces were acting on the coil. One was इनवर्ड्स एंड अदर वाज आउटवर्ड्स। सो जिसकी वजह से आपके पास दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की बट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई। अब ये दो फोर्सेस इस तरह से एक्ट करेंगे दैट दे डू नॉट शेयर देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो वहाँ पे आपके पास क्या होगा कि एक कपल प्रोड्यूस होगा। दिस कपल वुड हैव सम रोटेशनल इफेक्ट एंड दिस रोटेशनल इफेक्ट इज नोन एज टॉर्क या टॉ। So that torque, we know that torque is given as force into moment arm। यहाँ पे आपके पास फोर्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो और आपके पास मोमेंट आर्म कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी हम देखेंगे कि हम मोमेंट आर्म को कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें एक टॉप व्यू से इस फिगर को देखना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे अब आपको इस सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि आप कैसे वो करोगे। अगर आप देखो तो आपके पास बी की डायरेक्शन इस तरह से थी, बी की डायरेक्शन ऐसा थी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल था, यहाँ पे साउथ पोल था, तो आपके पास बी की डायरेक्शन अगर हम ड्रॉ करते तो वो इस तरह की थी। अब आप इसको टॉप व्यू से जब आप इस कॉइल को देखते हो, यानी आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो कहीं, सो यहाँ पे तो शाफ्ट लगी हुई थी, तो ये आपके पास सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे शाफ्ट का सेंट्रल पॉइंट है। सो यहाँ पे आपको यूँ नज़र आ रही होगी कॉइल। यहाँ पे आपको पता है ये आउटवर्ड्स है और ये इनवर्ड्स थी। सो यहाँ पे आपके पास
नीचे की तरफ अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको यूँ नज़र आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस कॉइल इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद बी। दिस कॉइल, इसकी लेंथ जो है दैट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद बी। फील्ड जो एल और बी के दरम्यान में एंगल है दैट इज़ थीटा। अब आपको यहाँ पे वो वाला कंपोनेंट चाहिए दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अगर आप यहाँ पे इसको बी को रिजॉल्व करो, ये बी वेक्टर है और आपने इसको रिजॉल्व करना है, तो आपको पता है ये दिस इज़ बी, सो दिस विल बी बी कॉस थीटा एंड दिस विल बी बी साइन थीटा। सो कौन सा आपके पास बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट? ऑब्वियसली जो बी इस साइड पे होगा दैट इज़ बी कॉस थीटा। So the factor, the component of the momentum which is contributing in direction of field, आप यहाँ पे वो लोगे। अगर आप यहाँ पे देखो, so this is b cos theta, so this component is taken in account। so यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको पता है कि फोर्स इंटू मोमेंटम इज इक्वल्स टू टॉर्क। सो यहाँ पे आपको फोर्स की वैल्यू भी पता है और आपको मोमेंटम की वैल्यू भी पता है, और आपको यहाँ पे थीटा को डिफाइन करना ज़रूरी है कि थीटा इज़ द एंगल between the plane of the coil, this angle between the plane of the coil and the magnetic field, and b is the width of the coil। जो small b है that is the width of the coil। एक length होती है, ये आपके पास a थी और ये width आपके पास b थी। सो ये आपको पता चल गई। सिंपल है। आगे आपने आपने इन तीन इक्वेशंस को कंबाइन करना है। टॉ इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। सो आपने इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर लिया और आपको यहाँ पे आपने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया। वी नो दैट के एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ is equals to area। so a into b will be area of this rectangular coil। so area को आप सब्सटीट्यूट कर दोगे a से, so you'll get tau is equals to n i b a cos थीटा। एन आई बी ए या निबा एन बी आई ए या नायाब भी इसको याद करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास दिस विल बी द टॉर्क एंड ए इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। नेक्स्ट आपके पास है कि मैक्सिमम टॉर्क कब एग्जिस्ट करेगा और मिनिमम टॉर्क कब एग्जिस्ट करेगा। सो मैक्सिमम टॉर्क आपके पास तब एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली अगर आप इस फॉर्मूला को देखो, जब आपके पास कॉज क्या होगा, कॉज विल बी ज़ीरो। सो कॉज ज़ीरो कब होगा, जब आपके पास प्लेन ऑफ द कॉइल इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आपके पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और आपके पास कॉइल इज स्टैंडिंग, आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है उसमें आप स्टैंडिंग वाली कॉइल ले रहे हो। सो जब वो स्टैंड कर रही है यानी वो ऐसे खड़ी ऐसे है, सो इस केस में फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं और आपके पास द प्लेन ऑफ द कॉइल इज सच दैट कि उसका एंगल जो है वो 0 डिग्रीज बन रहा है। या आपके पास जो अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो कि इसका परपेंडिकुलर आपके पास बाहर की तरफ आ रहा होगा। सो इसका परपेंडिकुलर आपके पास बाहर की तरफ आ रहा होगा। सो परपेंडिकुलर और बी के दरम्यान में एंगल क्या होगा, और आपके पास 90 डिग्रीज का एंगल होगा। सो आपके पास बेसिकली जब कॉइल लेटी हुई है, ये वाली कॉइल जब लेटी हुई है, सो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। और जब वो खड़ी हुई है यानी आपके पास अगर ये एन और ये एस और आपके पास ये कॉइल अगर ऐसे है, ये कॉइल खड़ी हुई है। लाइक आप पेज को देख सकते हो कि पेज आपके पास वर्टिकली खड़ा हुआ है, और जब पेज लेटा होता है तो वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम टॉर्क होगा, और जब पेज खड़ा हुआ होगा 90 डिग्रीज पे एंगल पे, सो वहाँ पे आपके पास मिनिमम टॉर्क होगा। बिकॉज उस केस में जब आपके पास पेज यूँ खड़ा हुआ है, सो यहाँ पे आपके पास देख सकते हो फील्ड लाइंस का प्लेन का और इसका एंगल, द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। सो प्लेन ऑफ द कॉइल आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा फील्ड के। या अगर आप इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करना चाहो, सो वेक्टर एरिया आपको पता है कि वेक्टर विल एरिया इस प्लेन का आपके पास, सॉरी इस पेज का या इस कॉइल का आपके पास इस तरह की डायरेक्शन में होगा। सो वेक्टर एरिया और बी के दरम्यान में जो एंगल है वो उनके पास ज़ीरो है। सो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि प्लेन इज पैरेलल टू द।
नेक्स्ट आपने कंक्लूजन देना है और कंक्लूजन शुड बी वेरी क्लियर. सो यहाँ पे आप कंक्लूड इस टॉपिक को ऐसे करोगे कि हेंस व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ B and the current carrying coil would experience a net force resulting in a couple whose torque is given by, आपने उस टॉर्क की वैल्यू बता देनी है और एंड पे आपने सब फैक्टर्स को डिफाइन करना है कि N क्या है, B क्या है, I क्या है, A क्या है और थीटा क्या है. थीटा इज द एंगल, यहाँ पे सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ. थीटा इज द, लेट मी कंप्लीट इट. सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड बी. सो दैट वाज इट. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कल क्लास में पूछना और फिर हम इससे अगला टॉपिक MRI, उसकी भी एक वीडियो होगी, वो आप देखोगे. हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक से भी स्टार्ट करेंगे.